Okay, good afternoon all. Today we start our DLD practical. Okay, so for that I share my screen. So I think in last week our practical started BCD to accessory or binary to gray code converter, right? Anyone remember? Anyone? Okay. So in last practical, we started our DLD first, DEL first practical, design and implement code converted binary to gray, and second is the BCD to accessory. Okay. For that, we know about the combinational circuit. So in theory, we studied about the combinational circuit. Combinational circuit means its output is totally depend on it input. It is called the combinational circuit. Okay. So there are a number of application of combinational circuit like as encoder, decoder, multiplexer and demultiplexer. Okay. So how to design the combinational circuit? For that we required the one problem specification or one circuit or truth table. From that we consider input and output. Okay, then derive the truth table, then obtain the simplified Boolean expression, draw the logic diagram and verify the correctness of its design. Okay, so our practical is the code converter. For that we require the binary and gray number. Okay, so we know the binary code. Binary code is it is the weighted code and it represented using the 8421 code. Okay, so these are the types of binary code: weighted, non-weighted, reflective, sequential, error detecting code. So weighted code is the binary code is the example of weighted code. Also the ABCD is the weighted code. Okay. So non-weighted code is the example is the gray code. That means its position is not having the weight. Okay. So accessory is the types of sequential code. So we only understood about the binary, gray, accessory and BCD. Okay. So we know the binary. This is the LSB, MSB side 8421 position weight. How to represent the 50101. Okay. So what is the gray code? Gray code is the unit distance code. That means the when we when we design the truth table for the gray code, then we find the one properties of gray code. That means the unit distance code. Suppose see this truth table. In that zeros code is a 000. Then next code is a 001. Then next code is a 00. That means only one bit is difference. So 00. Then here only last bit is difference. Then 1 and 2 may only last second bit is difference. Okay. Then this bit is difference. Likewise, that's why it is called the unit distance code. Then gray code it used in the K-map also. So this is the binary to gray code conversion. We know about this binary, how to convert this binary to gray code conversion. Then how to design this binary to gray code conversion. Okay, for that we require the truth table for binary to gray code conversion. Then write the K-map for output of gray code. Then third is the logic diagram for binary to gray code. Then verify this logic diagram using the truth table. Okay. So this is the binary code. So this is the binary code. Binary is the input for this binary to gray code conversion. Then this is the output, and this is the K-map. K-map for G0, G2, G1, G3. So anyone having doubts for this truth table or for K-map? This is the practical session. We discuss your problem, your query.
Okay. So this is the hope you know how to this K-map is designed. Okay. Yes, ma'am. मैम आई हैव क्वेरी मैम। बोलो बोलो। वो ट्रुथ टेबल एक बार एक्सप्लेन करो ना। ये पूरा ना बाइनरी टू ग्रे का मैं पेपर पर करूँ या ऐसे ही समझा तो भी यस मैम। चलेगा, मतलब स्लाइड पर समझाओ। मैम पेपर पे करे तो भी चलेगा, पेपर पे करो मैम। ओके। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। करेक्ट दिखाई दे रहा है या मतलब मिरर इमेज ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं? उल्टा मैम दिखाई उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है मैम, आया समझ उल्टा दिखाई दे रहा है मैम। आप बराबर है। Okay. So for binary to gray, first write down truth table. Okay. So for truth table, input is binary and this is the output. What is output? Gray code. ग्रे। Okay. ओके और यहाँ पर डेसिमल नंबर भी लिखो ताकि आपको के मैप में इजी जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Okay, so for binary we know the binary number 0 0 0 0 1, then 2, then 3, then 4, 5, 6, then 7, 8, 9, then 10, sorry, then 11, 12, 13, 14 and 15. Okay, then ग्रे कोड, जहाँ तक मैंने बाइनरी टू ग्रे का कन्वर्जन बताया, 0 0 का ग्रे कोड 0 ही आता है, 0 1 का 0 1 ही आता है, 2 का 3 आता है, 3 का 2 आता है, ठीक है। अगर फिर किसी को याद नहीं है कि कैसे आता है तो फिर से अगर एक्सप्लेन करना है तो वो भी बोलो। बाइनरी टू ग्रे मैम वो कन्वर्ट करते आता है, सिर्फ वो ट्रुथ टेबल में कैसे लिखते हो टेबल ट्रिक में नहीं लिखो। पता है कुछ ओके, कुछ। ट्रिक्स चाहिए क्या? ठीक है, 7 तक एक बार निकाल देते, 7 तक 0 to 7। ओके, 7 तक अगर लिखना है तो ये एज इट इज यहाँ पर 0 0 लिखो। ओके, उसके बाद इसके बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करके लेना है आपको। सपोज 1 0 0 का क्या आता है, पूरा 1 0 0 का करते हैं 0 एज इट इज। 0 1 का क्या कोड आता है? 1 1 0 का 1 आता है, 0 0 का क्या आता है? 0, राइट? यस और नो? 6। ओके, देन 0 1 0 1। नेक्स्ट भी इसका क्या आएगा? 0 0 का क्या कोड आएगा? 0, देन 0 1 1 1 0 1 0 1 1, राइट? आपको जो भी मैंने स्टेप्स को एक्सप्लेन की थी वही मैं यूज कर रही हूँ। देन 0 1 1 0, इसका बाइनरी, ये बाइनरी नंबर है और ये ग्रे नंबर है, तो 0 0 का कोड क्या आएगा? 0। 0 1 का कोड क्या आएगा? 1। 1 1 का कोड क्या आएगा? 0। 0 1 का कोड क्या आएगा? 1। समझ में आ रहा है या नहीं? एनीवन? अगर आपको नहीं, यस मैम समझ गया।
ओके, बाकी लोग भी बोलते रहो, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। सो नेक्स्ट है, लास्ट कौन सा बाकी है? 0 1 1 1। सो 0 एज इट इज 0 1 1 1 1 0 1 1 0। सो ओके, यहाँ तक लिखा आपने ग्रे कोड। सो प्लीज अभी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। अब क्या करना है, ये जो भी लास्ट है वो डायरेक्टली इन्वर्ट करके लेना है। पूरा कॉम्प्लीमेंट करो, 8 आने चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद की मिरर इमेज ले। मिरर इमेज मतलब कैसे? अब अगर ये पोजीशन में अगर लेती थी, ये कितने 4 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बाद में क्या है? 0। देन ये क्या है? 0 0 1 1 1 1 0 0। ओके, देन 0 1 1 0 0 1 1 और 0। ओके, अगर आपके पास टेबल अगर है, बाइनरी टू ग्रे अगर आपके पास टेबल है तो प्लीज वो चेक करो। एक बार हम टेबल चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं जो बाइनरी टू ग्रे है। एक मिनट। आपके नोटबुक में भी ये ट्रुथ टेबल चाहिए। मैं ये ऑफ करती हूँ, मतलब स्क्रीन शेयर करती हूँ, ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। यस मैम। आपने चेक किया होगा कि ये ट्रुथ टेबल और वो ट्रुथ टेबल सेम है। अगर यहाँ पर आप 7 तक देखते हो और उसके बाद का चेक करो, समझ में आया कैसे लिखना है? आपको सिर्फ 0 to 7 तक ग्रे कोड याद रखने, बाकी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैंने आपके सामने ही लिखा है। सो समझ में आया आपको? यस मैम। सो नेक्स्ट क्या पढ़ाऊं मैं आपको? के मैप में वैल्यू कैसे पुट करनी, ये पढ़ाऊं या आपको के मैप आ जाएगा, या यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊं कि कैसे के मैप में मैंने वैल्यू पुट की? ये देखो, मैं आपके लिए लेक्चर ले रही हूँ, ये मुझे आता है। मैंने पीपीटी पर भी लिया तो भी मुझे समझ में आएगा, और मैंने पेपर पर लिया तो भी मुझे चलेगा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम, के मैप पे पीपीटी पर पढ़ाऊं या पेपर पर, मतलब दिखा नहीं आपको वैल्यू? पेपर पर मैम। पेपर पर मैम। ओके, फिर मैं स्क्रीन ऑफ करती हूँ। जब भी आपको लगेगा कि नहीं अभी स्लाइड भी चाहिए, आपको वो भी देखना है, तो तब मुझे बोलो, ठीक है। उस स्लाइड की वजह से Yes, ma'am. कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ किया है, ठीक है। सो बीच में किसी को बोलने को मत बोलो। ओके, ठीक है। अभी मैं, हाँ एक मिनट, अभी मैंने पूरे के मैप में ड्रॉ करूंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ही अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं अभी मेरा लेक्चर स्टार्ट करती हूँ के मैप का। सो प्लीज बीच में कोई भी मत बोलो, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आपका चेहरा दिखाई देता तो बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। सो ये जो भी ग्रे कोड है, इसको, इस वेरिएबल को अभी मैं नाम देती हूँ। अभी यहाँ पर क्या है? B0 B1 B2 B3। ओके, आपने कौन से भी वेरिएबल के नाम दिए तो भी चलेगा, लेकिन जनरली बाइनरी है तो बी लिखते हैं, ठीक है। और ग्रे है तो क्या लिखना है यहाँ पर? G0 G1 G2 और G3, ठीक है। सो फर्स्ट के मैप में हम किसके लिए ड्रॉ करेंगे? G0 के लिए, ठीक है। सो के मैप फॉर G0, ओके। सो ये 4 वेरिएबल का के मैप आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी B3 B2 B1 B0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर ग्रे कोड का यूज हो रहा है, ओके।
अब क्या इस लेबलिंग करते के में आपके जो भी बॉक्सेस है उसको ठीक है। अभी आपको कॉन्सेंट्रेट क्या कहाँ करना है, ये जो भी G0 का कॉलम है ओनली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मैंने एक फेंट लाइन ड्रॉ की है, ओनली हमें क्या करना है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो 0 के लिए क्या वैल्यू है, 0 के लिए क्या वैल्यू है, ओके आपको नहीं बोलना है। 0 के लिए वैल्यू है 0, 1 के लिए वैल्यू है 1, 2 के लिए वैल्यू है 1, 3 के लिए वैल्यू है 0, 4 के लिए वैल्यू है 0, 5 के लिए वैल्यू है 1, 6 के लिए वैल्यू है 1, 7 के लिए वैल्यू है 0, ओके। देन 8 के लिए वैल्यू है 0, 9 के लिए वैल्यू है 1, 10 के लिए वैल्यू है 1, 11 के लिए वैल्यू है 0, देन 12 के लिए वैल्यू है 0, देन 13 के लिए वैल्यू है 1, 14 के लिए वैल्यू है 1 एंड 15 के लिए वैल्यू है 0, ठीक है। सो ये वैल्यू मैंने पुट की। सो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, आंसर मतलब अभी ग्रुपिंग कैसे आएगी, ये 4 की ग्रुपिंग आएगी, ठीक है, और ये ग्रुप आएगा। इसके अलावा कुछ भी 1 यहाँ पर रिमेनिंग नहीं है। सो यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या आएगा 4 का, यहाँ पर ऊपर जो भी कॉलम है यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है B1 B0, सो यहाँ पर B1 B0 बार, ठीक है। देन नेक्स्ट है B1 बार देन B0, ठीक है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ G0, G0 इज इक्वल टू B1 बार B0 प्लस B1 B0 बार, ठीक है। सो इसको इसी को कंबाइनली बोलते हैं B0 XOR B1, ठीक है। ये एक बुलियंस लॉ है। सो ये ऐसे XOR का ये इक्वेशन है, XOR को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सो ये हुआ इक्वेशन फॉर G0। देन नेक्स्ट है के मैप फॉर G1। okay, so inputs are B3 B2 B1 B0 and label for K map 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। K map को नंबरिंग देते हैं, सो ये इजी जाएगा K map में वैल्यू पुट करना। ओके, अब कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है, अभी हमने ये स्ट्रक्चर लिखा है सिर्फ किसका, के मैप का। अब कहाँ पर देखना है, जैसे हमने G0 का होल कॉलम किसका देखना, सिर्फ G1 0 0 1 1, ठीक है। सो अभी आप चेक करते हो। सो 0 के लिए क्या वैल्यू है यहाँ पर 0, 1 के लिए वैल्यू है 1 के लिए क्या वैल्यू है 0 के लिए वैल्यू 0, 1 के लिए भी वैल्यू 0, देन 2 3 4 5 2 3 4 5 के लिए वैल्यू है 1, देन 6 7 के लिए वैल्यू है 0, ओके। देन 8 9 के लिए वैल्यू है 0, देन 10 11 10 11 12 13 के लिए वैल्यू है 1 1 एंड 14 15 के लिए वैल्यू है 0 0, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग करनी, सो ग्रुपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर चेक करते हो ये एक 4 की एक ग्रुपिंग बनेगी, देन ये एक कॉडी बन रही है, सो ये एक, ठीक है। सो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, अगर इसके साइड में देखते हो तो 1 1 मतलब ही B2, इसके टॉप में अगर जाते हैं तो क्या है ये B1 बार, ओके। देन ये साइड में अगर चेक करते हैं तो क्या है यहाँ पर
ये साइड में अगर देखते हो तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 0 0 0 0 इज नथिंग बट दी B2 बार। देन इसके ऊपर अगर देखते हो तो 1 1 1 0, सो 1 कॉमन है, सो 1 कॉमन है मतलब B1। सो G1 इज इक्वल टू B2 B1 बार प्लस B2 बार B1, सो B1 XOR B2। सो ये है G1 का इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट है K-map for G3, same process। अब कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है, सिर्फ G2 कॉलम, सिर्फ यही कॉलम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। सो G2 कॉलम की वैल्यू चेक करनी है। सो 0 के लिए वैल्यू है 0, 1 के लिए वैल्यू है 0, 2 के लिए वैल्यू है 0 एंड 3 के लिए भी वैल्यू क्या है 0। देन 4 5 6 7 के लिए वैल्यू 1 1 1। देन 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 के लिए वैल्यू है 1 1। ओके, और बाकी अगेन 12 13 14 के लिए वैल्यू है 0 0 0। सो अगेन इसकी ग्रुपिंग कैसे आएगी, अगेन 4 1 का ग्रुप आएगा। सो यहाँ पर अगर चेक करते हैं इस ग्रुपिंग के लिए, इसके हॉरिजॉन्टल साइड यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, B3 बार एंड B2, B3 बार एंड B2, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है B3 एंड B2 बार। सो G3 इज इक्वल टू B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार। सो G3 इज इक्वल टू B2 XOR B3। ओके, सो लास्ट K-map फॉर, सॉरी ये K-map G2 के लिए था, लास्ट K-map फॉर G3। सो सेम प्रोसेस यूज करनी है 1 0। अगेन K-map के बॉक्सेस को नंबर दे दो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, अब किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ओनली G3। सो G3 में अगर चेक करते 0 to 7 के ऊपर क्या लिखना है, पूरे 0 0, और इसके बाद सब 1 1। ओके, सो ग्रुपिंग क्या आएगी, होल 8 1 की ग्रुपिंग आएगी, और जिसका इक्वेशन आएगा, इसमें अगर साइड में चेक करते हो तो यहाँ पर क्या कॉमन है ये, सो दिस इज B3। सो G3 इज इक्वल टू B3, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर G3। सो कंबाइनली अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते, G3 के इक्वेशन ये हैं, G2 का इक्वेशन क्या है, B2 XOR B3। नेक्स्ट G1 का इक्वेशन क्या है यहाँ पर, B1 XOR B2, और G0 का इक्वेशन है B0 XOR B1। ओके, अब मेरे पास ये कंबाइनली सब क्या है इक्वेशन आए। सो थर्ड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रुथ टेबल, नेक्स्ट स्टेप है K-map, एंड थर्ड स्टेप क्या है, लॉजिक डायग्राम।
ठीक है। सो लॉजिक डायग्राम के लिए क्या चाहिए, कंबाइनली सब इक्वेशन चाहिए। सो इक्वेशन है G3। सो इनपुट यहाँ पर लिखने B0, B1, B2, B3 इक्वेशन। यहाँ पर क्या आएगी इक्वेशन G0, G1, G2। सो ये आउटपुट है G1, G2 and G3। These are the input, these are the outputs। ओके, सो G0 के लिए क्या इक्वेशन है, B0 and B1 XOR, ठीक है। G1 के लिए क्या इक्वेशन है, यहाँ पर चेक करो। G1 के लिए क्या इक्वेशन है, B1 XOR B2, B1 XOR B2। ओके, G2 के लिए क्या इक्वेशन है, B2 XOR B3 एंड G3 के लिए एज इट इज, मतलब B3 एज इट इज लिखना। एज इट इज मतलब सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी। ओके, सो दिस इज द लॉजिक डायग्राम फॉर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। ओके, तो ये यहाँ तक पेपर पर ये, हेलो, यस मैम, हाँ ओके समझा। ठीक है। सो ये यहाँ पर मैंने बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एक्सप्लेन किया है। सो अभी आपका क्या है, ये जो भी फर्स्ट प्रैक्टिकल, अभी मैं फिर से शेयर करती हूँ, शेयर स्क्रीन। सो ये जो भी प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में क्या है, इम्प्लीमेंट दी कोड कन्वर्टर बाइंड टू ग्रे एंड BCD टू एक्सेस 3। सो दो कोड कन्वर्टर है। सो कोड कन्वर्टर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और कोड कन्वर्टर का यूज क्या है, अगर दो कंप्यूटर है A एंड B, सो दो कन्वर्टर कोड कंप्यूटर में अगर डिफरेंट कोड है, एक में बाइनरी और एक में BCD या एक में ग्रे, तो एक दूसरे में कंपैटिबल करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कोड कन्वर्टर का यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी जो मैंने देखा, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया मैंने, बाइनरी टू ग्रे। ठीक है, सो ये मैंने पेपर पर लिखा, आपको ये सब राइटअप में भी लिखना है। राइटअप मैंने ब्लॉग पर अपलोड किए हैं, सो वो चेक करो। एक रेफरेंस है, रेफरेंस से आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, तो आप वो भी ले सकते हैं। देन आप सेकंड प्रैक्टिकल भी, सबमिशन की भी लिंक मैंने गूगल क्लासरूम में दी है, तो वहां पर भी आपका प्रैक्टिकल सबमिट कर सकते हो। अब ये हुआ सब थ्योरी का पार्ट, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, सो आप डिजिटल वर्क या आपके पास जो एंड्रॉइड ऐप है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो ये इजी है। सो यहाँ पर एंड्रॉइड ऐप का भी यूज कर सकते हो। सो एंड्रॉइड ऐप में दिखा दूं या आपको डिजिटल वर्क में एक्सप्लेन करूं मैं? एंड्रॉइड ऐप, एंड्रॉइड में ऐप, दिखाइए। ओके। सेकंड प्रैक्टिकल तक एंड्रॉइड ऐप ओके है, लेकिन इसके बाद एंड्रॉइड ऐप नहीं चलेगा, क्योंकि गेट के प्रैक्टिकल के लिए ओके है। एक मिनट, शेयर स्क्रीन करनी पड़ेगी मुझे। मोबाइल पर मैं दिखा देती हूँ एंड्रॉइड ऐप का वर्क कैसे होता है। होस्ट, मोबाइल ऐप कौन सा यूज करना पता है ना, तो मुझे ना होस्ट ये मिल नहीं रहा है अभी, कि मैं मोबाइल पर भी आपको दिखाने वाली थी। नेक्स्ट अगर कल लेक्चर है तो कल लेक्चर में भी मैं एक बार दिखा दूंगी कि कैसे एंड्रॉइड ऐप में ये यूज करते हैं। ठीक है, सेम यूज करना है आपको। क्या करना है, एक्स और गेट ही वहां पर यूज करना है। और कितने कनेक्शन, सिर्फ इनपुट 4 है
आउटपुट इजी मैम। हाँ, सो ओनली 3 गेट यूज होने वाले, सो हार्डली 5 या 10 मिनट्स का काम है, ठीक है। लेकिन आपको इसके साथ डिजिटल वर्क, ये जो भी सॉफ्टवेयर, इसका भी यूज करना है, ठीक है। 6 मिनट है, मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल को कर होस्ट लेंगे बनाना मैम है, हम। ठीक है। सो बाकी जिनको भी प्रॉब्लम है ना, वो एक तो पर्सनली पूछो, या जिन्होंने भी ये किया है ना सॉल्व यूजिंग एंड्रॉइड ऐप, उनके साथ डिस्कस करो, ठीक है। इजी है, या कल अगर पॉसिबल है ना तो कल भी मैं ऑनलाइन दिखा दूंगी, ठीक है। सो इसके अलावा किसी को कुछ मैम प्रॉब्लम है डिजिटल सॉफ्टवेयर में दिखा सकती हूँ मैं अभी, ऐप में से प्रॉब्लम है होने मैम का, दिखा दो ना सॉफ्टवेयर में एक बार। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके। सो यहाँ पर मैंने आपके लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये बनाया था, बाइनरी टू ग्रे का, ठीक है। लगे तो आपके लिए मैं नया बना के दिखा देती हूँ, या ये एक बार मैं रन करके दिखाती हूँ फिर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो रन करने के लिए आपके पास ट्रूथ टेबल है, तो आप 0 0 का पता है, राइट। ये सिलेक्शन के लिए 0 0 का आउटपुट क्या आता है? 0 0, राइट। देन 0 1 का आउटपुट आता है 1, 2 का आउटपुट क्या आता है, सॉरी 2 का आउटपुट क्या आता है 3। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. और 8 का आउटपुट क्या आता है? बाइनरी अगर 8 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 1 1 0 0, ऐसा आउटपुट है, ठीक है। सो यहाँ पर भी इजी है, मैं एक बार यहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ, शायद मीटिंग के लिए 4 मिनट है, लेकिन जितना भी हो रहा है वो प्लीज चेक करो। सो यहाँ से कौन सा गेट लेना है? एक्स और गेट लेना है। कितने एक्स और गेट लगेंगे? 3 एक्स और गेट लगेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर इनपुट्स, यहाँ पर इंटरएक्टिव इनपुट दिखाई दे रहा है, सो ये इंटरएक्टिव इनपुट लेने हैं आपको। कितने इनपुट्स लेने हैं आपको? 2 3 एंड 4, एंड देन उसको लेबल करो ताकि वो इजी जाएगा। सो ये सपोज B0 है मेरा इनपुट, ठीक है। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, एंड देन इसकी साइज भी आप क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हैं। मैंने रेड कलर दिया था, इनपुट के लिए रेड कलर यूज किया था, और बाकी के लिए आउटपुट के लिए ग्रे, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आएगा ये B0 है। देन अगेन लगे तो इसी को कॉपी करो और इसको राइट क्लिक करो, एडिट बोलो, और फिर यहाँ पर लिखो B1। देन अगेन राइट क्लिक करो, एडिट बोलो, देन वहां पर आएगा B2। देन अगेन कंट्रोल C कंट्रोल V करो, देन यहाँ पर आएगा B, एडिट बोलो, और ये आएगा लास्ट में यहाँ पर B3, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या दिखना है? एलईडी। तो कितने आएंगे ये? 4, 1 2 3 एंड 4। इसको भी नाम दे दो। सो राइट क्लिक करो, एडिट करो, ये G3, इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये आउटपुट पर हमने लिखे हैं, तो ओके। राइट क्लिक, एडिट, G1 एंड ये G0, ओके। अब अगर आप इक्वेशन की डायग्राम अगर देखते हो तो उसमें क्या लिखा है? B3 एज इट इज कनेक्टेड टू G3। सो यहाँ से वायरिंग ले लो, ठीक है, और कनेक्ट करो B3 कनेक्ट टू G3, ठीक है। अगर इसको सिलेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्टर ले लो, क्योंकि मुझे ये लाइन नीचे लेनी है।
ओके, देन नेक्स्ट क्या इक्वेशन है? G2 के लिए क्या इक्वेशन है? कोई बोल सकता है G2 के लिए क्या इक्वेशन है? B2 XOR B3, राइट? B2 XOR B3. B2 XOR B3. ओके, देन आउटपुट को कनेक्ट करो G2. देन नेक्स्ट क्या है? G1 के लिए क्या इक्वेशन है? B1 एंड B2. so this is the equation for B1. Then G1. ओके, ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट है. सो इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ले लो और रन करो.